Hello everyone. So in this video we will be talking about mutation. लेकिन आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल ना मिलकर म्यूटेशन का ओवरव्यू मिलेगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन. आपको एक ही कंप्लीट एक शॉर्ट में म्यूटेशन उसके टाइप्स एंड सब टाइप्स विद सम एग्जांपल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. सो Mutation is any change in genetic material. In this case, we will be talking about DNA because in most of the cases you will find DNA act as a genetic material. So आपके genetic material में जो भी change होता है जिसकी वजह से genotype and phenotype also get change, उसको हम mutation के अंदर रखते हैं. Mutation lead to the variation. म्यूटेशन से आपको वेरिएशंस मिलती हैं एंड वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट, वी नो दैट. ओके, रिकॉम्बिनेशन एक और प्रोसीजर है जिसकी वजह से आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है. सो टोटल वी हैव 3 different types of mutation. First one is gene mutation. Second one is chromosomal aberrations. And the third one is genometric mutation. So in gene mutation आपको म्यूटेशन सिर्फ एक जीन में दिखानी है, नॉट इन अ कंप्लीट क्रोमोसोम. सिर्फ एक जीन की बात होगी एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. फर्स्ट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन and the second one is substitution mutation. Then further, frame shift is of 2 types: addition, which is also known as insertion, and second, deletion. Substitution is again of 2 types: transition and transversion. Okay, so first of all, mutation is divided into 3 broad categories. Gene mutation जो first one है आपका, gene mutation में you will be discussing only about changes in a gene. Okay, so mutation in a gene. Then gene mutation is divided into 2 groups: frame shift mutation and substitution mutation. In frame shift mutation you have another 2 types: addition or deletion. In the case of addition, आप एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देते हो जिसकी वजह से पूरा आपका फ्रेम चेंज हो जाता है. एंड सेम फॉर द डिलीशन में भी अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करोगे तो उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट में चेंजेस आते हैं. व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट? इफ आई कंसिडर दिस एज एन एग्जांपल, तो अगर आप 3 ट्रिपलेट्स को लेकर बात करते हो तो आपके पास फर्स्ट ट्रिपलेट एंड सेकंड ट्रिपलेट. अगर मैं इन 2 टी के बीच में इफ आई इंट्रोड्यूस अनदर न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल C को इंक्लूड कर दूं, तो नाउ द फ्रेम हैज शिफ्टेड. आपका फर्स्ट कोडोन सेम रहेगा बट द सेकंड विल बी CTC, जबकि इससे पहले आपका ओरिजिनली TCG था. तो दिस इज चेंज in the frame. So this is called frame shift and this can be caused due to addition or deletion. If you want to add a nucleotide, वो भी आपका शिफ्ट कॉज करेगा, फ्रेम आपकी शिफ्ट हो जाएगी. सेम फॉर द डिलीशन, अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट भी करते हो तो उसकी वजह से भी आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन, एज अ नेम सजेस्ट, आप किसी एक न्यूक्लियोटाइड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. इन द केस ऑफ ट्रांजिशन, आपका purine get replaced by purine and pyrimidine get replaced by pyrimidine. So in this case, purine is replaced by purine and pyrimidine is replaced by pyrimidine. While in the case of transversion, अगर हम इसकी बात करें तो in this case, purine is replaced by pyrimidine. यहाँ पे प्यूरिन रिप्लेस होता है पैरामिडीन से एंड
the vice versa. That means pyrimidine will be replaced by purine. So this was your gene mutation. That's all. Okay. So gene mutation में एक दूसरा term भी use किया जाता है, that is point mutation. रीजन ये है क्योंकि जीन म्यूटेशन में मोस्टली आपको एक पॉइंट यानी एक न्यूक्लियोटाइड में ही म्यूटेशन देखने को मिलता है. दैट्स व्हाई पॉइंट म्यूटेशन इज अनदर टर्म. Okay, so this was your complete gene mutation. One example that you have to keep in your mind, that is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is the best example for substitution mutation, because in the case of sickle cell anemia आपका GAG get replaced by GUG. In this condition this A get replaced by U in the case of mRNA. mRNA की स्ट्रैंड में ये जो A था उसकी पोजीशन में U आ जाता है. दैट मीन्स इट्स अ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और ये एक पॉइंट पे हो रहा है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इज एज अ पॉइंट म्यूटेशन ऑल्सो. So this was your gene mutation. That's all. In the case of chromosomal aberrations, if we talk about chromosomal aberration, there is change in structure of chromosome. जब आप chromosomal aberration की बात करते हो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही चेंज दिखाना है. दैट्स ऑल. दैट मीन्स यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है क्रोमोसोम के, एंड दिस कैन बी ड्यू टू, वी हैव 4 डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिलीशन, सेकेंड वन इज डुप्लीकेशन, थर्ड वन इज inversion, and the fourth one is translocation. In the case of duplication and deletion, it's quite simple. आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम का एक पार्ट या तो डिलीट हो जाएगा, ओके, या फिर कोई पार्ट आपका अगेन से डुप्लीकेट हो जाएगा. What I mean to say, we can take an example. If this is your chromosome A, B, C, D, E, this is your gene sequence. अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दूँ, now chromosome will only have A, B and C. So there is a change in the structure of chromosome. Same in the case of duplication, I can duplicate a particular segment of a chromosome. Like this is an example, A, B, C and D. If I want to duplicate this portion, then your chromosome will be A, B, C, D, B, C, D, because that particular segment get duplicated. Okay, so this was your deletion and duplication, which is very simple. In the case of inversion, further we have 2 types. First is pericentric and second one is paracentric. In the case of pericentric, आपका जो एक सेगमेंट इंक्लूड होता है जिसमें आप चेंज दिखा रहे हो, वो सेगमेंट कंटेन करता है सेंट्रोमियर ऑल्सो. इन द केस ऑफ इन्वर्जन देयर इज अ फ्लिप ऑफ 180 डिग्री. आप पहले तो इन्वर्जन में 180 डिग्री का फ्लिप दिखाते हो, और अगर उस फ्लिप में उस सेगमेंट के बीच में सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट है तो इट इज pericentric inversion. If centromere is absent, then it is a paracentric inversion. For example, look, this is your chromosome A, B, C, D, E, F. ये आपके जीन सीक्वेंस है, और अगर मैं इस सेगमेंट में इन्वर्जन कॉज करना चाहती हूँ, दैट मीन्स देयर विल बी 180 डिग्री फ्लिप. सो नाउ यू हैव D, C, B and A, because the thing has been flipped. This particular segment आपका 180 डिग्री में फ्लिप हो चुका है, तो अब ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है, एंड इस सेगमेंट के बीच में आपको सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है. दैट मीन्स इट इज़ अ पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन. पैरासेंट्रिक में आप जिस सेगमेंट की बात करोगे, जिस सेगमेंट में आप 180 डिग्री का फ्लिप दिखाओगे, उस सेगमेंट में आपको सेंट्रोमियर की प्रेजेंस दिखाने की नीड नहीं होती है. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसलोकेशन फर्दर आपके 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज सिंपल एंड द सेकेंड वन इज रेसिप्रोकल. What I mean to say, in the case of simple, there is a simple
ट्रांसफर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। सिंपल ट्रांसलोकेशन में आपके क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में आप दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज दिखाते हो, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिसमें आप रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखते हो बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच आर क्रोमोसोम नंबर 22 and chromosome number 9. So this was your chromosomal aberrations. So we have talk about the change in the structure of chromosome, जो आपके चार तरीकों से हो सकता है: deletion, duplication, inversion, which is further of two type, pericentric and paracentric, and the last one is translocation, which is another two types, simple and reciprocal. That's all. So this was your gene mutation and chromosomal aberration. Last one is genometric mutation. So genometric mutation ko we will be discussing in this part. In the case of genometric mutation, further we have two parts. First one is euploidy and the another one is aneuploidy. And if we talk about euploidy, आपको यहाँ पे दो चीज़ें फिर से देखने को मिलती हैं. फर्स्ट इज मोनोप्लॉइडी, विच इज़ ऑल्सो रिटन एज हैप्लॉइडी इन सम बुक्स. लेकिन आपको समझना है कि हैप्लॉइड कंडीशन और मोनोप्लॉइड कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस होता है. दोनों में सेट ऑफ क्रोमोसोम एक होता है, बट इन द केस ऑफ मोनोप्लॉइडी आपके सेल में ओरिजिनली नेचुरली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. बट इन द केस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स ओरिजिनली वहां पे डिप्लॉइड कंडीशन थी, बट आफ्टर परफॉर्मिंग मियोसिस क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है, तो आपके टू सेट से वो सिंगल सेट में कन्वर्ट हो चुका है. देन यू कैन यूज द टर्म हैप्लॉइड. बट आपको नॉर्मल बुक्स में दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करके दिखा रखा है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझना चाहिए. आफ्टर मोनोप्लॉइड सेकेंड टर्म इज पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी जब आप मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम दिखाते हो, दैट इज 3n, 4n, so on, this is considered as a polyploidy. And monoploidy में there will be a single n, and इनके बीच में we know that कि एक डिप्लॉइड कंडीशन भी होती है जो ह्यूमन बींग्स में आपको देखने को मिलती है, जिसको आप 2n बोलते हो. Okay, so you have completed euploidy and the another one is aneuploidy. In the case of aneuploidy we have two subtypes. The first one is hypoploidy and the second one is hyperploidy. In the case of hyperploidy, further we have two types. First is trisomy and the second one is tetrasomy. In trisomy we have 2(1 + 1) condition, and in tetrasomy we have 2(1 + 2) condition. And in the case of hyperploidy we have monosomy, that is 2n - 1, and next one is nullisomy, that is 2n - 2. That's all for your mutation. यही आपको समझना है. इट्स लाइक एन ओवरव्यू सो दैट यू कैन सिंप्लीफाई द होल टॉपिक ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज आपका म्यूटेशन फर्दर जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है आपके बोथ मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए. सो दिस वॉज योर म्यूटेशन. आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. ये आपके रिविजन में काफ़ी हेल्प कर सकता है. एंड थैंक यू सो मच. प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट एनी अदर वीडियोज़ किसी और टॉपिक पे, यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. थैंक यू सो मच.